Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed chapter 33 from civics, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 34. Chapter's name is Law and Social Justice. In this chapter we will study about the importance of law in establishing social justice, and also we will study about law and the workers, and what is the role of government in enforcement of laws, and also we will discuss other topics like plight of the workers working in a chemical factory which has received orders from the government to move to a distant place, and how can laws ensure that market works in a manner that is fair, and other topics, foreign companies and the Bhopal gas tragedy. And also one more important points in this topic, that is advantage of foreign companies in setting up production in India and Bhopal, and we will study detail about the Bhopal gas tragedy and environmental pollution. How was environment treated earlier and what has been the change in perception, and a change in perception, and these are the topics which we will discuss one by one. Okay, so let's start chapter 34, Law and Social Justice. First, open your book, page number 282, Introduction. In this chapter we shall read about the importance of laws in establishing social justice. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसकी जैसे लॉज की क्या इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, इन इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने में लॉज का क्या इम्पोर्टेंट है, कानून का क्या इम्पोर्टेंस है. It is the duty of the government not only to make laws. It is not only the duty of the government to make law and after that nothing to worry about after making laws, but they have the duty to look after all these, but also to enforce them so as to prevent unfair practice of the private companies, which can prove a great hindrance in protecting workers' interest. And also, it is not only the duty of the government to make laws, but also it is the duty of the government to look after what, to enforce them as to prevent unfair practice. जो बेवजह की, बिना मतलब कि बेकारण की जो प्रैक्टिस है, जो काम हो रहे हैं, उनको भी रोकना गवर्नमेंट का काम है. जैसे कि आपके प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि कभी कभी परेशानियां पैदा कर देती हैं, एंड ऑल्सो रुकावट पैदा कर देती हैं, किसके लिए, इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ in establishing social justice. As already said, laws are a body of rules and regulation. Laws क्या है, body of rules and regulations. Law वही है, कानून, जो कि हम rules और regulations बनाते हैं, उसको follow करते हैं, यही कानून laws हुआ, which are enforced by the political authority. इसके द्वारा enforce किया जाता, अमल किया जाता है by the political authority, that is the government, to govern the affairs of the community. Laws and the workers. अब हम देखते हैं कि वर्कर्स के लिए कैसा लॉ है, उनके लिए लॉज फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं तो किस तरह से होते हैं और क्या क्या होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं. लॉज एंड द वर्कर्स. If there had been no definite laws, the different types of workers, अगर मान लीजिए कोई definite laws नहीं होता, तब क्या होता, जो different types of workers हैं, कौन कौन से workers हैं,
such as industry workers, factory workers, farm workers, and workers at a shop, who are generally poor and illiterate, would have been much exploited. अगर कोई कानून नहीं होता तो इन वर्कर्स की क्या होती, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता, इनका शोषण किया जाता। ठीक है। Almost all private companies, contractors and businessmen try to make as much profit as they can, and this is very fair that mostly private companies, they want more and more profit. They never think about their workers, whether they are living, where they are living, or what type of food they are getting, or where they are lodging. They never thought about them. They only thought about their benefit. वे हमेशा अपने ही बेनिफिट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। In their drive for profit, they pay very little to the workers. अपने प्रॉफिट को ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं, वर्कर्स को कम से कम सैलरी देते हैं। And some of them might not pay them any wages. और कुछ तो ऐसी हैं कि जो कि वर्कर्स काम कर लेते हैं लेकिन अंत में उनको पैसा नहीं देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं काम करवा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं। But to deny wages to workers is quite illegal. लेकिन ये बहुत गैर कानूनी है ना कि काम करवा करके आप वर्कर से, लेबरर से काम करवा करके आप उसका पैसा ना दें, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई और रॉन्ग इन द आइज ऑफ लॉ। ये कानून की नज़रों में बहुत ही गलत बात है। बट टू सेव द वर्कर्स फ्रॉम ऑल सच टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए उसने मिनिमम वेजेस पास किए हैं। कैसे? The law requires that no worker should be paid less than the minimum wages fixed for various workers. वर्कर्स के लिए पेज जो वेजेस हैं वो फिक्स्ड कर दिए जाते हैं कि इससे कम किसी को नहीं दिया जाएगा। It must be mentioned here that minimum wages are revised upwards आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों के बाद फिर वो रिवाइज होते हैं, यानी वो और बढ़ाए जाते हैं। इन दिस वे द लॉ ऑन मिनिमम वेज हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे इन एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस फॉर द वर्कर्स। इस तरह से ये जो मिनिमम वेजेस वाली बात है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जो कि किसके एस्टेब्लिशमेंट में सहायता करती है। It helps in the establishing social justice for the workers. Now, role of the government in the enforcement of laws. क्या गवर्नमेंट का रोल है इसको अमल करने में, लॉज को अमल करने में? The government has a great role in the enforcement of law. Mere passing of laws has got no meaning. अगर केवल लॉ पास कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अमल करने की भी बात है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर इस पर गवर्नमेंट ने फुल्ली अमल नहीं किया तो लॉ पास करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेयर पासिंग ऑफ ए लॉज ऑन वेजेस इज़ नॉट इनफ टू सेव द वर्कर्स। मिनिमम वेजेस पर वेजेस पास कर देना गवर्नमेंट का, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। स्पेशली व्हेन दे आर पुअर और पावरलेस, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि गरीब भी हैं प्लस पावरलेस हैं, उनके पास पावर नहीं, उनके पास पहुंच नहीं है। ठीक। द फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स और फेसिंग रिप्रेशल्स ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस। क्या होता है कि वो लोग जितनी सैलरी फिक्स होती है उस सैलरी को भी वो नहीं पाते हैं, और नहीं पाने के बाद भी वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते? उन्हें डर रहता है, उनको भय रहता है कि कहीं हम आवाज़ उठाए तो कहीं मुझे मेरे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कहीं बाहर ना कर दे।
ठीक है, जो हमें मिल रहा है वो भी ना मिले, इसकी डर से वो अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं, उभारने नहीं पाते हैं। द एम्प्लॉयर्स नाउ नो दिस फैक्ट वेरी वेल, जो एम्प्लॉयर्स हैं इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो दे ऑफन इंडल्ज इन ऑल underhand means, use their influence and power of money to pay workers less than the fair wages। इसलिए जो कंपनीज हैं, जो मालिक हैं, उन्हें कम से कम सैलरी देने की कोशिश करते हैं। In such cases, mere passing of laws has got no meaning unless it is enforced strictly by the government। ये केवल लॉ पास करने से ही काम नहीं चलेगा जब तक कि इसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती है। In order to ensure that the law on minimum wages is strictly followed, अब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है तो the government must inspect the factories and working sites regularly and punish those who violates the law। और इसके लिए कि कोई उनको जिससे मान लीजिए कि जो सैलरी तय की गई है वो सैलरी उनको मिल रही है कि नहीं, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर फैक्ट्री का दौरा करना पड़ेगा, समय समय पर वर्कर से पूछताछ करनी पड़ेगी, और समय समय पर क्या करना पड़ेगा, उस वर्किंग साइट पर उन्हें जा कर के रेगुलर जानकारी लेनी पड़ेगी। It is only by strict enforcement of the laws that the government can control the unjust activities of the individuals and the factory owners। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तब जा कर के कहीं ये कंट्रोल हो सकता है, अनफेयर जो सैलरी है वो कंट्रोल हो सकता है। फैक्ट्री ऑनर्स हो सकता है उनके अंदर डर पैदा हो, भय पैदा हो कि ऐसा करने पर हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो मे बी वो अपने वर्कर्स को फुल सैलरी दें। Only then and then alone can the ideal of social justice be fulfilled। इस तरह से जब ये सब सारी चीज़ें होने लगेंगी तब जा कर के उन्हें फुल जस्टिस मिलनी शुरू होगी। Many of these laws have been based on the fundamental rights। कुछ laws किस पर आधारित हैं, फंडामेंटल राइट्स पर। Guaranteed by the Indian Constitution and by whom it is guaranteed, it is guaranteed by our Constitution। The right against exploitation says, और इस फर्स्ट जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत क्या कहा जा रहा है, says that no one can be forced to work for low wages or to work under bondage, because the Constitution has laid down that no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or any other hazardous employment। और इसके तहत इस जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत क्या है, इसमें यह कहा गया है कि हम किसी को फोर्स के साथ उससे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, वो भी कम वेजेस दे करके हम उसे जबरन काम नहीं करवा सकते। और यहाँ तक कि जो बच्चे 14 ईयर्स से कम एज के हैं उन्हें आप फोर्सफुली किसी भी डेंजरस माइन में या कोई और डेंजरस प्लेसेस में, फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हैं। ओके, In spite of the above constitutional provisions, it has been found in the census of 2001 that more than 12 million children were still working in hazardous occupation। इतना कुछ होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बाद भी यह देखा गया है कि 2001 में लगभग 12 मिलियन बच्चे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वर्कर्स जैसे कि बहुत खतरनाक जगहों पर ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं। दिस वेरी फैक्ट फोर्स द गवर्नमेंट टू अमेंड द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट इन
2006। इस तरह से गवर्नमेंट को एक प्रिवेंशन लाना पड़ा, चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 2006 में पारित किया गया। इट प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन अंडर 14 years of age from working in hotels, restaurants, shops, etc. makes employing these children a punishable offense। इन जगहों पर उन्हें काम नहीं करना है, और जो करते हुए पाया गया, जो करवाते हुए पाया गया, उसको पनिशमेंट मिलेगी। Anybody violating this law is to be penalized with a jail term of 3 months। अगर किसी को ऐसा करते हुए पाया गया कि तो उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, जेल हो सकती, 3 महीने की जेल हो सकती है। 2 years टर्म ऑफ 3 months to 2 years, 3 months से लेकर के 2 years की जेल हो सकती है। और फाइन ऑफ 10,000 to 20,000 only by passing such laws and enforcing them strictly can ensure the goal of सोशल जस्टिस। और इसी तरह से लॉज पास करके और उनको अमल करते हुए करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस के जो हमारा गोल है, जो एम है सोशल जस्टिस पाने के, तभी वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक। सो टुडे ओनली दिस मच। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट plight of the workers working in our chemical factories, which has received orders from the government to move to a distant place. Thank you.